unmuting myself. Okay. So, question था सपना आनंद जी का। जी प्लीज पूछिए। श्वेता Good शर्मा जी। afternoon. Good afternoon. Good afternoon. जी Good afternoon, doctor. I'm Sapna Anand. So I have a 9-year-old daughter. So the question for me is that how to handle the emotional quotient of the children while during the COVID times, when one of the parent is positive, or even after effects of the COVID in the family. Yeah, excellent. This is one of the most pressing things right now, is the emotional and psychological well-being of the child. Yes. Right? Like I said, as being adults, we also get stressed. हम भी परेशान हो जाते हैं. हम भी कई बार, I mean, I'm not talking about you, I'm talking about myself. I also get tense very much because I'm into the thick of things. जो फोन आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो व्हाट्सएप देखता हूँ, जो कॉल्स आते हैं, जो टीवी पे देखता हूँ, जो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, it's all the negativity. Yes. Right? And I'm not saying कि हो नहीं रहा. So it is something like you have to be positive. In the sense, like I said, like right at the beginning of this Zoom meeting, I said we should absolutely switch off the TV. There's no point listening to the same thing over and again. How the government has done this, how many people have died, how many people are being burned, where the body is being thrown. It is very traumatic. If it's very traumatic for me to see a photograph, जो aerial photograph दिखाते हैं गंगा में bodies float कर रही है, यदि मैं परेशान हो सकता हूँ, एक 9 साल के बच्चे पे सोचे क्या बीतेगी. Right? So be very clear, is don't talk all the time about COVID. This life is not just COVID, it's much beyond. It's much beyond. It's alive. We are alive today. We have so many other things to do, so many nice things happening in life. I mean, you should tell our children also कि भाई तुम ये नहीं देखोगे. They don't see, they don't read the newspapers, right? They watch TV a lot. Every child has a mobile. He has his WhatsApp groups and he has his YouTube, and otherwise he's got a tablet, and forever they're watching all these things. Like I said, everything should be under parental guidance. जो हम देखते हैं ना सारे movies में PG लिखा होता है. So before she's not being exposed. She's not being exposed to any of such media channel or any such news. But yes, my husband being positive at home, he was taking extra precautions, and even after the post-COVID recovery mode. But then he is coming and going to his office and having meetings. Right now it's lockdown, but yes, before that he was having. So she's so stressed that why my dad is always wearing mask, although he's being cautious at his own side that he wants to protect his family. Excellent. So she's missing that part. Right. And this is not with only somebody who's 9 years old. This could be you. I mean, you could be probably 25, 30, whatever age you is. It could be you. You are, but you're not expressing it. You say कि ठीक है, but he's being so the best way to do is the only way to do is just talk to your child. You talk to your child as if it's perfectly normal and बोलो कि ये mask पहना, it has to become a norm for us. And ये समझ लीजिए, after this phase over COVID का second phase हो जाता है, so second wave हो जाता है, we have to continue wearing masks. This is going to be a new normal. You tell the child, यार कि look, जैसे हम हाथ मुंह धो के अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, मास्क अच्छा सा मास्क पहन के जाएंगे बाहर. So you have to take it as a normal and tell her कि look, भाई मैं बाहर जा रही हूँ सब्जी लेने, भाई मैं तो मास्क पहन के जा रही हूँ. तुम after this lockdown is over, so you say tomorrow you're going to go to the school, you're going to wear a mask. So it's just that. And since your child has recovered, since your husband has come out very nicely of COVID, you tell her, look, COVID is just another illness. भाई पहले भी तो होते थे इतने सारे बुखार हो गए, कभी जुकाम हो गए, कभी बुखार हो गए, कभी वायरल हो गए, जुकाम खांसी सबको ही होता था. ये आपको हो गया, मुझे हो गया. Everyone has had at least 5-6 episodes every year. You know, sometimes you have a loose tummy, sometimes because of eating outside and all that. So you be very clear कि भाई ये तो normal चीजें हैं. If your child is protected from that thing कि उल्टा and come back, don't discuss COVID. I mean, if you have to tell your husband कि look,
You come back, whatever bad news you want to tell me, please don't tell it in front of her. और उसके सामने behave as if normal. You can ask him, हाँ भाई, how was your office? How was the meeting? क्या किया आपने, ये क्या वो क्या? But he should not go on saying कि यार फलाने का ना उसकी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मैं वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, उसकी हालत बहुत खराब हुई, person was on a ventilator. You know, these things really, you know, it is बिल्कुल they create so much of pressure on everyone, not just children, no, not a 9-year or a 6-year-old. Probably 4-5 साल का बच्चा समझता है, but ये समझता है कि घर में टेंशन का माहौल है, तो आप टेंशन का माहौल दूर करिए. And interact with the child. I mean, that's the only way I feel ki the child is very understanding, she's very sensible, but she's saying why post recovery. It's not only at, you know, outside we are wearing masks, it's at home also he is taking that precaution for wearing that mask since long. So now it is taking a toll over her head, that why. Yeah, this is because she's very sensible, she's very sensitive. Any other kid would hardly bother. कि ठीक है, पापा mask पहना नहीं पहना, probably नहीं, other kid will not even notice. I mean, all the more he can just say, look at his papa and mama, says hello, hi करके चले गए वो. एक जो sensitive बच्चा है, is it a single child? Yes, It is not yes. a single child. See, this, what did I say? This is a single child. जो single children होते हैं, it's got nothing very personal, but we tend to protect them a lot. We always tend to, you know, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भाई इसकी हर सुख दुख के जिम्मेदार हम हैं, इनकी जिंदगी जो हमारे पे चलती है, we are wrong. इसके हर सुख और हर दुख के हम जिम्मेदार नहीं होते हैं. उसके एक अलग जीवन है, उसके अलग सुख दुख हैं, अलग प्रॉब्लम्स हैं. So only thing is, we do not expose our children to the normal world. It is not you, it is me, it is everyone in this group. मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं तो अपने बच्चों को बहुत फ्री छोड़ता हूँ, ना. एक बार बच्चों की तकलीफ होती है, we are very careful. So it is just that we are slightly overprotective, which is a natural tendency in humans. Why humans? Even animals do. So it's got nothing to it, but हम लोग थोड़ा सा protective होते हैं. So you have to act as if act क्या? You have to act. I shouldn't say act. ये तो normal हो गई चीजें. Your husband is fine. तो चला यार कि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ना आजकल वायरस हवा में फैल रहा है, इसलिए हम लोग केयरफुल हो रहे हैं. हमारे घर में काम वाली आ रही है, सब्जी वाला आ रहा है, कोई सामान देने आ रहा है, कहीं उसको ना हो, इसलिए हम प्रिकॉशंस ले. Simple. I mean, you tell it laughing without getting stressed. Otherwise, being a sensitive child, ये कहेगी यार मम्मी मुझे बुद्धू ना. I mean, sorry, but that is the way the children think. They outthinker. No. These days, children are very smart and they need replies. Before you say it, they know कि मम्मी सही बोल रही है, गलत बोल रही है. मम्मी मुझे बस चुप कराने के लिए बोल रही है. Children are very smart. Right. I mean, they read our emotions, read our body language much before we open our mouths. We do. Yes, exactly. Thank you so much, doctor. श्वेता शर्मा जी, आपका कोई सवाल? Yes, ma'am. Good जी afternoon, प्लीज sir. पूछिए. Good afternoon. Sir, my daughter is 7 years old. और आजकल सर उसकी जो है वो टीथ जो हैं वो टूट रहे थे और दोबारा फिर से आ रहे हैं. तो सर इस ड्यूरेशन में उसके जो नीचे वाले टीथ थे वो तो इजीली उसकी आ गए, लेकिन जो ऊपर वाले टीथ हैं उससे वो बड़ी परेशान है. वो कई बार मुझे कहती है कि मम्मा मैं आपको बाइट कर लूं, और इनफैक्ट मैंने उसको अभी 2-3 डेज बिफोर मैंने ऑब्जर्व किया कि उसने अपनी आर्म पे खुद बाइट किया हुआ है. तो मैं कंसर्न थी कि मुझे लगा ये क्या हुआ कि कोई रैश है, तो उसने मुझे बताया नहीं. बट नेक्स्ट डे उसने बताया कि मम्मा मुझे इतना पेन था कि मैंने अपनी आर्म पे कट कर लिया. एंड शी इज सिटिंग विद मी आल्सो सर. तो उसका ये क्वेश्चन है कि सर से पूछो. वो काफी टाइम से ये कह रही थी कि आज हम जरूर ज्वाइन करेंगे ये मीटिंग, और सर से पूछने के लिए सर आई कैन शो यू द आर्म ऑफ माय चाइल्ड. कोई बात नहीं, that's sweet. अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, when the first teeth erupt, जो पहले दांत निकलते हैं भाई 8 महीने पे या 10 महीने पे, आपने देखा होगा हर बच्चा जो है यूं करता रहता है, ग्राइंड करता रहता है. बिकॉज हमारे जो गम्स में से जो टीथ कट होके बाहर, वी कॉल इट कटिंग, जिस कट होके बाहर को निकल रहा है, उस समय इरिटेशन होता है, which is normal. ये तब तक रहेगा जब तक कि वो हल्का सा बाहर ना निकले. एक बार हल्का सा बाहर निकला है फिर खत्म हो गया. So this irritation that is there will probably persist for another 15 days or 20 days. The moment it comes out, थोड़ा सा भी आपका sharp edge आ जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा. She'll forget about it. बिल्कुल पेन नहीं होगा. It is just the same thing.
और रही Okay. बात को, आई थॉट आप सवाल पूछोगे कि एक पहले वाले तो नीचे जल्दी आ गए, बाद वाले तो बहुत लेट आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली 6 months, 1 year, 2 years भी लगते हैं कई बार। आपने देखा होगा कई बच्चों की तो खिड़की बनी होती है वहां पर, 2 साल बाद तक आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक और यू सो नॉर्मल बेटा मच। बिल्कुल कुछ नहीं करना, चिंता नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल है। ओके सर, कुछ स्पेसिफिक डाइट जो इस ड्यूरेशन में मैं उसको दे सकती हूँ? वैसे कैल्शियम कैलकेरिया वगैरह हम दे रहे हैं। देखिए कैलकेरा नो, कैलकेरा बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं है। और रही बात कैल्शियम का, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारे डाइट में एडिक्वेट कैल्शियम होता ही है। यू वांट टू गिव विटामिन सप्लीमेंट्स, उसके लिए नहीं, वैसे आप दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कोई तरीका नहीं है। कई लोग ना शहद लगा देते हैं, कई लोग कोई जेल लगा देते हैं। एग्जैक्टली। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, यदि आप मुझसे पूछो। देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस टू दिस। इट इज जस्ट कि काउंटर रिटेंड कर रहा है, थोड़ी देर सुन कर दिया, थोड़ा सा इरिटेशन और कुछ हो गई। इट इज समथिंग लाइक हमें भाई कोई कहीं दर्द हो रहा है और अचानक और कोई दर्द शुरू हो जाता है, तो वी फॉरगेट अबाउट अ बैक पेन। जैसे मान लो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और सडनली मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, आई फॉरगेट अबाउट द हाथ का दर्द, मैं सिर्फ हेडेक हेडेक कॉन्सेंट्रेट करूंगा। आप ह्यूमन बॉडी वैसा ही है। तो वही सब कैलकुलेटर फॉल्स तो कभी भी हम किसी को भी नहीं रेकमेंड करते हैं, बिल्कुल नो, इट्स अ बिग नो, NO। हाँ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, पर इसके दांतों के लिए इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जी। आप कैल्शियम खिलाओ नहीं खिलाओ, दांत तो निकलने हैं। सर एक्चुअली आई वाज कंसर्न्ड ओनली कि ये बाइट किया इसने अपनी आम को, तो तो मुझे लगा कि कुछ और कोई इरिटेशन हो प्रॉब्लम। रही है, इरिटेशन हो रही होगी ना, इरिटेशन हो रही है। जस्ट गिव मी अ थैंक मिनट प्लीज, just give me a minute, I'll just mute myself, just a second. इट्स ओके सर। सर डी सिंह का क्वेश्चन भी है। मिस्टर डी सिंह, आर यू देयर? हेलो Mr. D Singh. Hello. Yeah, I'm audible. Yeah, you are यस यस audible. यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Good afternoon, sir. Good Thank you afternoon to so you. much for your guidance towards all the parents who are concerned about their kids. And just to add up in one question here, when during this pandemic time, the people are more struggling with, along with the health, with the screen time of the kids, because even though parents also get involved, I don't hesitate to say, but the kids are isolated and putting up the more screen time toward the education as well as for the extracurricular activities. How to handle this situation, sir? Because the more engagement toward this tech savvy items, kids automatically get slow, and we unable to judge that whether she or he is well or not, because they more feel stress and feeling sleepy most of the time, because they are more focused toward their mobiles, tabs, and the laptops. So how we have to take this care for the kids from screen timing avoidation for these kids? Right. Thank you. That's a very practical question. So first of all, let's talk non-COVID. We won't talk about COVID types. Okay, how much? Okay, I'll ask this question to you. How much of screen time should you allow a child who's 1.5 or 2 years old? कितनी देर आपके हिसाब से देखना चाहिए? For 1.5 years, I don't think that she need to be with the screen time. I am very practical on the same. Absolutely. So 2 years से नीचे zero screen time. It's zero screen time. Zero screen time means the child will not be watching YouTube, will not be watching cartoons, will not be watching nursery rhymes on the phone, will not be watching anything. ठीक है? I mean, यहाँ पर I've seen मेरे यहाँ जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो जब हर बच्चा जो है, कुछ बोलना आता नहीं है, but he knows how to change, he knows how to touch the mobile and change the screen and start YouTube and pause and all, and you say कि भाई मैं देख रहा हूँ, pause कर दो, they start screaming because they don't like it. Less than 2 years बिल्कुल नहीं. अब रही बात एक बच्चा 2 से 5 साल का, how much of screen time should be allowed? Officially you can allow only 1 hour. ठीक है, 1 hour, वो भी बेसिकली क्या होता है, दैट इज समथिंग लाइक जैसे कि बिकॉज चाहे हम कुछ भी कह लें, आजकल का बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी में पैदा हुआ. आई मीन यू हैव चिल्ड्रन, यू नो कि यू माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम विथ योर फोन, योर चाइल्ड हु इज प्रॉब्ली 5, 6, 8, he will solve the problem much faster than you do. When you start texting, a child of 10, 12 texts much faster and does that. If there's a problem and he says, hey papa aapko ye nahi pata, mommy aapko ye nahi pata, it's just because they have been born into it. Probably most of us who were not born into it, we learned it.
because there'll be some who came in when some of the audience would be there, were born when the mobiles came in. But now touchscreen, okay, mobiles were touchscreen aa gaya. So kids, a child who comes into this era now, from the moment he is born, he is onto mobiles. I mean, accept it or not. I mean, because probably the mothers do it, or there's no way out. I mean, it's a mindful of information. Na? कि आपको वो कहते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन का खजाना है मोबाइल, कुछ भी ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, कोई भी डाउट आती है, कुछ समझ में नहीं आया, पट कर गूगल कर लिया आपने, यूट्यूब देख लिया, लिंक कर लिया, वो कर लिया. So we cannot deny all of them. But rahi more than 5 years. For that, they say maximum of 2 hours up to the age of 18, including your screen time involved in studies. This is where our COVID comes in. Okay. So हमारे COVID time में क्या हुआ, हमारा सब कुछ online हो गया. अब हमें कुछ whether we like it or not, the kid is doing online classes probably 3 hours every day or 4 hours every day, which is a lot, I feel, which is a lot. बच्चे ने अपना वो डबल टाइम तो अपने यूज कर लिया आपने स्क्रीन में, उसके बाद आपको बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए. अब आप उसके लिए सिंपल कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग सिंपल, मैं ही दो फोन लेके घूमता रहता हूँ सारा टाइम, मैं खुद करता हूँ, आई एम गिल्टी. बट I still use the word easy is just don't use the phone in front of the child. That is the only way. Because I can't say na ki I can use the phone, I can Google, I can see everything, I can do WhatsApp, but you will not be allowed to do it. Once you don't do it, the child just takes it as ki another equipment or technology or for use when needed, not a necessity. I hope it's okay, Mr. D. Singh. Try to explain it. Not easy. Not easy. This is the biggest challenge. It is a challenge. It's not easy. It's not easy. I think जितना आप बच्चे को और किसी चीज में occupy करोगे, because as you say that they are much aware and ahead from the parents as of at that age, and that they are actually making I'm say very directly to the fool to the parents also, that they are saying they are studying but they are utilizing some other resource. Obviously. Sometimes YouTube, sometimes something else. So that is the only, because as I related this thing to, because there was a parallel news also there due to the 5G. The more bandwidth we are using in technology, we are using now. Every house have the broadband connections. People are more used to keen to nearby to the devices. So that is also aggravating thing. But I feel and read out from the articles. So that's like this is the 5G conspiracy. I would like to debunk it. I mean, let's not get carried away by what the media says. कि 5G towers की वजह से 5G की वजह से COVID का transmission हुआ. No. I mean, we are using 5G now. It's coming to India now. But the Western world has been using it in 2016, 2017, 2018. So why should we say कि अरे नहीं आजा 5G इस साल आया इसलिए हमें हो रहा है? I mean, that is just a conspiracy. That's something like media friendly and media gets something to talk about. I would not like to discuss that at all. But yes, devices हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ भी कर लोगे. I'll give a very simple example. Lock your phone. Use your own privacy code and give it to your child. If the child is at least 8 or 10, मैं लिख के देता हूँ कि 10 मिनट में वो आपका फोन अनलॉक कर देगा. How he does it, I don't know. But this is how they are so good. Whereas if I give you my phone, you will not be able to unlock it. But फिर वही है ना कि उन लोग बचपन से पैदा हुए हुए हैं टेक्नोलॉजी में, तो उनको बहुत कुछ आता है. उनको ये पता है कि ये करना है, ये करो, ऐसे करो, रिस्टोर करो, कुछ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं. But here's where we lose to them. But if finally a challenge, there is an advantage also. The creativity is there with the kid. They learn a lot. We don't stop. But only thing that parents are struggling big time to managing this time, because kids get reluctant to the things, stubborn also with the nature, because they also need a span to time. They want to be isolated themselves. That is a big challenge for the parents. हाँ, बात बिल्कुल सही है. वो working parents, reparalyze engage on the work. If the parents are not working, they only have a work to just pinpoint the kid. So every time when parents pinpoint the kid, they got irritated. So they're always the parents behind them only. That's the very unbalanced life nowadays. इसमें ना एक चीज मैं साफ कह जाता हूँ. Very 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 simple. Four words. This too shall pass. ये हमेशा के लिए नहीं रहना. COVID ने हमेशा के लिए नहीं रहना. This will go. This too shall pass. So just let's bide our time.
स्टे सेफ, बच्चों को ध्यान रखें, जस्ट एक्सेप्ट इट और अपने आप को थोड़ा शांत रखें बच्चों के सामने, बिकॉज एज सच इफ यू आर स्ट्रेस्ड द किड इज आल्सो स्ट्रेस्ड। यदि आप Thank you परेशान so हैं या much. मैं परेशान हूं, मेरे बच्चे भी परेशान हैं, बिल्कुल whatever reason, so everyone is लास्ट में feeling डॉक्टर साहब मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा कि अब हम सुन रहे हैं कि थर्ड वेव स्टार्ट होने वाली है और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी बच्चों पे, और सर मेरी एक नॉन है, उनका बेटा इस चीज से इतना स्ट्रेस में आ गया है कि वो सारा दिन बस ये कहता है इस चीज को हाथ नहीं लगाना, उस चीज को हाथ नहीं लगाना, मम्मा कपड़े बदलो, बार बार उनको बोलता है कि वो किचन में जाएगी तब कपड़े चेंज करवाता है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है कि थर्ड वेव आने वाली है, अगर थर्ड वेव आ गई तो मैं इफेक्टेड हो जाऊंगा। अगर वो उसकी मदर उसको डांट देती है ना कि मैंने अभी तो कपड़े चेंज किए थे, कहता फिर दैट मीन्स आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मेरे को मार देना चाहते हो, आप सुन नहीं रहे हो, थर्ड वेव स्टार्ट होने वाली है और वो किड्स को ही इफेक्ट करेगी। तो इस चीज का सर बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है और सीरियसली बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी स्ट्रेस में जा रहे हैं उस वजह से। राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड वेव की बात करते हैं। वी हैड, सबको पता है कि भाई कोई भी डिजीज जो है, कोई भी एपिडेमिक हो या पैंडेमिक हो, वेव्स में आती है। फर्स्ट वेव आता है, सेकेंड वेव आता है। सो हाउ डू यू नो द थर्ड वेव विल बी देयर? अभी इट्स ऑल स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब कि हमारी जो कमिटी बैठती है, लोग बैठते हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं भाई 10 15 20 50 लोग, हम लोग वी आर द थिंक टैंक। वी थिंक आज ओके ऐसा हुआ था, पहला जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में या 1918 में, तो वो उसके भी 2 वेव हुए थे, उसके 3 वेव हुए थे, तो इसका भी होगा। सो देन somebody says कि नहीं ऐसा है, बच्चे तो इम्यूनाइज है नहीं, तब तक जब तक थर्ड वेव आएगा तब तक अडल्ट सारे इम्यूनाइज हो जाएंगे, तो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट होगा कि सेकंड वेव इफेक्ट होगा। ये सब हो सकता है, हो सकता है और होना है में थोड़ा सा फर्क है। यू सी, हो सकता है, मैं कहता हूँ चलो होगा, बट अभी आप ये सोचिए कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हम लोग की नॉलेज कितनी बड़ी है, टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है, how better we are treating, what all facilities we have, we did, because इस साल जो है हमारे यहाँ because of our population, जो हम पिछले साल एक्सपेक्ट कर रहे थे हुआ नहीं, तो हम बहुत खुश हो गए, इस साल हो गया, बहुत सारे केसेस आ गए, तो हमारा जो हेल्थ के सिस्टम है, आई वुड नॉट से कोलैप्स्ड, लोग कहते हैं कोलैप्स यूज करते, कोलैप्स नहीं हुआ, दे वर्किंग वेरी वेल, बट हमारा केस तो इतना बढ़ गया, इट इज समथिंग लाइक आपके घर में 5 लोग चाय पीने आए तो ठीक है सबको दे दोगे, सडनली आपके लोग आपको कह दिया जाए कि 50 लोग आ गए चाय पिलाने, कैसे करोगे आप? इट इज समथिंग लाइक दैट। सो ओके, सो सेकंड वेव, सो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। नाउ वी रियलाइज कि हमें भाई हॉस्पिटल्स की इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, वी नीड हेल्थ केयर सपोर्ट, वी नीड, सो वी आर आल्सो ग्रोइंग विद द पैंडेमिक। So by the time the third wave comes, this is what I would like you to explain to the child. कि हम लोग अभी प्रिपेयर कर चुके हैं, हमें फर्स्ट हुआ हमें पता लग गया, सेकंड में ऐसा हुआ, अब थर्ड में हम प्रिपेयर्ड हैं। जब मुझे पता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो we'll be prepared to tackle it. So this child has to be counseled properly. I would not like to label it as depression. It is that's a very strong word. I would like to, जो आप बता रही हैं, he's got more of a fear psychosis. डरता है वो कि मुझे ये हो जाएगा, he's not sad, मुझे हो जाएगा, मम्मी doesn't प्यार नहीं करती है, this is tangential thinking, वो लूप में चले जा रहा है, सोचता रहता है, it starts thinking negatively. So this has probably come from the fact कि या तो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया गया उसको. So how the thing is, you have to tell him कि okay, now I'll give you some suppose एक आदमी को इन्फेक्शन होता है, एक लेडी को इन्फेक्शन होता है, कई लोग होते हैं कि आते हैं और दिन में हर कुछ चीज हुआ 50 बार हाथ धोने लग जाते हैं. इसको हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. आपको लगता है कि जहां मैंने ये पेन छुआ, उसमें जर्म्स हैं, वो निकालो यार, सैनिटाइजर लगाओ. नाउ पहले होता था हम हाथ धोते थे तो इनवेरिएबली उनके हैंड्स वगैरह देखो बिल्कुल सूखे हो जाते थे, बिल्कुल जैसे ना वॉशरमैन्स हैंड्स, क्योंकि हमेशा वो धो रहे हैं. So it is not just related to this child. This disorder जो हमारे पास पहले भी है, किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ होता है बचपन में, कोई एलर्जी हुई होती है मान लो पैरों पे, तो पर्सन इतना डरा हुआ रहता है कि अरे मुझे हो जाएगा इन्फेक्शन, बार बार हाथ धोना, पैर धोना, मतलब साफ रखना है. So this child is going in for that. He thinks कि भाई मैं अब उनको ये समझाना है कि फर्स्ट में हमने कहा था कि इनिशियली वी थॉट द फर्स्ट वेव जब आया, वी थॉट कि नहीं
इट इज बीइंग स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट्स, सरफेसेस से, फोमाइट से। फोमाइट्स मतलब कि जैसे मान लो कि भाई मैं एक पैकेट ले आया बाजार से और घर पे रख दिया और किसी ने और पैकेट कुछ लिया तो हो गया। इस बार उन्होंने देखा कि आप उससे नहीं होता, इफ यू सी वेरी केयरफुली। इस बार उन्होंने वेरी क्लियर है कि ट्रांसमिशन इज नॉट थ्रू सर्फेसेस। तो कहते हैं कि पहले होता था हम हर सर्फेस को डिसइंफेक्ट करना है, स्प्रे करना है, ये करना है, उसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज उन्होंने ये देखा कि उसका ट्रांसमिशन जो है बहुत ही कम है, ना कि बराबर फेस टू फेस रहने से ट्रांसमिशन ज्यादा होती है। सो दिस इज सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क रखो। एंड थर्ड थिंग आजकल जो आ गया कि एरोसॉल, एयर जो हवा से स्प्रेड होता है, एयरबोर्न होता है। ताकि जो आपका जो वायरस है, पहले हम कहते थे वायरल पार्टिकल बहुत बड़ा है तो भाई ज्यादा दूर नहीं जाएगा, भाई ज्यादा 6 फुट जाएगा और गिर जाएगा, बिकॉज इट्स हैवी। बट उन्होंने अब देखा है कि स्मॉलर पार्टिकल दे स्टे इन द एयर सस्पेंडेड फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, तो इसलिए होता है। तो यू हैव टू टेल देम कि भाई हमारी छूने से नहीं हो रहा बेटा, ये जो हो रहा है हमारा, पहले हम लोग सोचते थे, गलत सोच थी हमारी। अब हमें ये पता है कि जो आदमी बात कर रहा है, जो सांस छोड़ रहा है, या जो छींक रहा है, जो खांस रहा है, या उसी रूम में हो, बेशक 10 फुट दूर पे हो, तो भी हो सकता है क्योंकि हवा में रहता है। यू हैव टू टेल हिम दैट। इफ यू एजुकेट द चाइल्ड विद करेक्ट इंफॉर्मेशन rather than giving के नहीं बात तो नहीं बैठा सकते अपने बच्चों को। तो मान लो 1-2 साल का बच्चा है, वो तो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब practically if you ask me, is probably more intelligent than you and I। जैसे हम बताते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, मेरे पास क्वेश्चन है दिप्ति अरोड़ा जी का। Yes, sir. Namaste, sir. First of all, thank you. Sir, I have a question regarding my son, sir. He is 4 years old. So he has a sneezing problem, very cold problem. Whenever he goes out or come out after taking bath, he starts sneezing. So इसकी immunity वो है sir, क्या है? What is the reason behind it? ये सबसे पहले ये इम्यूनिटी नहीं है जी, इसमें इम्यूनिटी का रोल नहीं आता। ये बेसिकली एलर्जिक। ये एलर्जिक का मतलब कि मोस्ट प्रोबब्ली कोई फॉर्म ऑफ कोई शायद फैमिली हिस्ट्री होगी। तो जब भी मौसम चेंज होता है, या जब भी सडन चेंज टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, स्वेटिंग हो जाती है बच्चे को, तो जब बच्चा सो के उठा, उसके साथ जाके मुंह धोया, छींके मारने लग जाता है। ये नहीं कि ठंड लग गई है, गर्मी लग गई, ये प्रॉबब्ली जो है एलर्जी ही है, और ये बहुत लंबा देर के लिए परसिस्ट करता है। नॉर्मली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि मोंटेलोकास्ट और लिवोसेट्रिजिन का कॉम्बिनेशन वगैरह दे दो, यदि चीज नहीं होती है। यदि भाई ऐसे बच्चे जो हैं स्किन एलर्जीज के लिए कॉमन होते हैं, बाद में रेस्पिरेटरी एलर्जीज हो जाती है, जैसे ब्रोंकियल एस्मा वगैरह होता है, ये चाइल्डहुड एस्मा भी होता है। बट ये हार्मलेस होता है, इसको बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और ये नहीं हुआ कि नजला हो गया जी, नजला दिमाग में चढ़ जाएगा, ये है वो है, कुछ नहीं होता। सिंपल, जब आपका एलर्जी नोज से आता है, इसमें आपकी जो बॉडी जो एलर्जी मतलब कि वो ज्यादा रिएक्ट कर रही है। यदि मैं किससे एलर्जिक हूँ, मुझे हर बात जो भी बोलता है बोलती है, उसको गुस्सा आता है, दैट इज आई एम एलर्जिक टू द पर्सन। सो हालांकि वही मान लो एक सिंपल डिओ स्प्रे लगाए या धूप बत्ती लगाई आपने, आपको कुछ नहीं हुआ, अभी उस रूम में हो, और उसके नाक में छींके आने लग जाएंगी, आंखों में से पानी आने लग जाएगा, यू टेल हिम कि तुम बाहर जाओ 2 मिनट, बाहर जाकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो इट इज अ वेरी हार्मलेस थिंग। तो बेस्ट होता है इससे यदि हम पता लगा सकते हैं कि किस लिए हो रहा है, जिसको हम लोग अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन कहते हैं। हमें ये पता लग जाता है कि बच्चा यदि उठते साथ ही यदि जाके मुंह धोता है तो होता है, टेल हिम कि उठते साथ ही मुंह मत धो, जस्ट वेट सम टाइम, 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर बाद बोलो। ऐसा नहीं उठते साथ ही जाके पानी की छींटे मारना है, या ब्रश करना है, या साबुन से मुंह धोना है। इट कुड बी दैट कुड बी अ ट्रिगरिंग फैक्टर। या कई बार आप देखते हो कि भाई मैं आज में छुट्टी है, मैं जाले वाले साफ करूँ एंड ऑल दैट, उससे हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। कईयों के घर में होता है कि पॉलिश हो रहा है, पेंट हो रहा है, उससे होता है। तो कुछ दिनों में बाद आपको पता लग जाएगा कि किस चीज से हो रहा है। यदि आप वो चीज पकड़ लिया तो बस वो अवॉइड करो, बस बिल्कुल ठीक, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार को 2-2, 3-3, 4-4 चीजें होती हैं तो मुश्किल होता है। अदरवाइज बच्चे थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं, उनको पता होता है कि भाई यदि मैं ये स्मेल आता है, यदि मैं ये खाऊंगा तो हो जाएगा, या कई बार नींबू हो जाए, कई बार मिल्क लेता हूँ, कई बार आइसक्रीम खाता हूँ तो हो जाता है, या कई बार मैं भाग के बाहर आया और साथ साथ पानी पी लिया तो हो जाता है। सो जनरली आप ऐसे जो भी 10 मिनट्स लेफ्ट हैं, सो 2-3 और क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ही आपसे कर लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, क्या उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए? देखिए, as of now the government of India guidelines are very clear कि breastfeeding
जो लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, एंड प्रेग्नेंट वेमेन को नहीं लेना चाहिए। ओके, सो इसके बड़ी सारे वो हैं, एंड इनफैक्ट इवन आई हैव बीन एडवोकेटिंग कि नहीं लगाना चाहिए ऑन आवर फोरम जो भी हैं, जो क्योंकि भाई अमेरिका कहती है दो, यूरोप कहता है दे दो, ब्रिटिश यूके कहता है दे दो, डब्ल्यूएचओ कहता है दे सकते हो, इंडिया कहता है कि मत दो। इंडिया में फॉक्सी है हमारी एक गायनेकोलॉजिकल, सबका ऑल ऑफ यू हैव गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशंस, जो गायनेकोलॉजिस्ट का एसोसिएशन, उन्होंने कहता है कि दे सकते हो। सो बट नाउ द फाइनल थिंग इज कि वन इज नहीं देना चाहिए, राइट? टिल लेट्स नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट. Okay, if but again, if the child is 1 year of age, वो बोलो मदर बोलो यार माँ का दूध बंद कराओ, खत्म, खाना खिलाओ. If the baby is just 3 months of age, no. अब breastfeed के दौरान, breastfeeding के दौरान वैक्सीनेशन मत लगवाइए. But however, if the mother बड़ी इंसिस्ट करती है तो आप अच्छी तरह समझा दीजिए कि भाई इतनी एडिक्वेट स्टडीज हुई नहीं है बाकी दुनिया, जैसे जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना करती है, आप कहो तो आप लगा दो. You finally leave at your own risk. Exactly. I won't like to use the word at your own risk, because by after all the patient is yours. The person is the person who's asking you trusts you. I mean, so आप risk sharing कह लीजिए. Let us say risk sharing, but समझा के ठीक तरह, मतलब ये कहें कि भाई गवर्नमेंट मेरा मना करती है, सिंपल. अब आप बताओ लगाना चाहते हो, क्यों लगवाना चाहते हो तो भाई देख लो कि कोई स्टडीज हुई नहीं है, कल को 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, शायद 1 महीने बाद गाइडलाइंस आने के लगा दूंगी. सीरियस से बोल रहा हूँ, 1 मंथ के बाद शायद आ जाए. ओके सर, क्वेश्चन है शिखा जी का एंड विवेक वालिया जी का, तो प्लीज पूछ लीजिए. गुड आफ्टरनून सर. शिखा मैम. हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. Sir, I have 2 daughters. One is 6 years of age and the younger one is 2.5 years old. At the time of first wave in September 2020, all of my family members got positive, including my 2 daughters also. तो अभी क्या chances हैं कि उनके अंदर antibodies बन गई होंगी, like third wave में they can be infected again. And the second question is कि what precautions we should have to prevent that. एंड द थर्ड थिंग इज कि जो आजकल फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं ज्यादा बड़ों के केस में भी, तो उस केस में हम कैसे श्योर हो सकते हैं, बच्चों के केस में लाइक बार बार टेस्ट भी नहीं करा सकते, तो कैसे हम श्योर हो सकते हैं कि वेदर द चाइल्ड इज इन्फेक्टेड और नॉट? राइट, गुड. द 3 parts of the question. फर्स्ट पार्ट, जो सबसे पहले किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? कोविड इन्फेक्शन होता है, हमारी एक इनिशियल फर्स्ट एंटीबॉडी बनती है, IgM एंटीबॉडी कहते हैं, फिर एक और नेक्स्ट लेवल एंटीबॉडी बनती है जो प्रोटेक्टिव होती है. अब वो कितने दिन प्रोटेक्टिव रहती है? मान लो कोई भी बीमारी होती है तो हम इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज आ गई, उससे आई हैव सर्वाइव्ड, सो मेरे पास एंटीबॉडीज हैं. पर ये एंटीबॉडीज जिंदगी भर के लिए नहीं रहती. सो नॉर्मली जो है ये उन्होंने देखा है कि अराउंड 3 months तक डिक्लाइन हो जाती है. 3 to 6 months तक ये समझ लीजिए कि आपकी एंटीबॉडी लेवल खत्म हो गई है. बट इसी बीच यदि आपको वैक्सीन लग जाता है या फिर से कोविड इन्फेक्शन होता है तो आपका अच्छा खासा जो सेकेंडरी वेव जो होता है एंटीबॉडी का वो ज्यादा देर लास्ट करेंगे. वो है बेसिक रैशनल ऑफ वैक्सीनेशन, राइट? सीधी सितंबर में आप सबको हुआ है और आपका वैक्सीन नहीं लगा है, यू पीपल आर एट एज मच रिस्क एज एनीवन एल्स नाउ. ठीक है? ओके, अभी आपको हो सकता है. let's not talk about the third wave even now. So how do you prevent it? Same thing, those 3 things: social distancing, hand hygiene, and masking. Nothing else. Okay. Of course, I mean, if you are in that age group of a vaccination, आप vaccination करवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन कराओगे आप, चाहे आपका पहले हुआ है तो दिस इज द वेरी फर्स्ट डोज के वैक्सीन से ही आपका बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अच्छा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आएगा. सर हमने तो लगवा लिया, लेकिन बच्चों के केस में वैक्सीन भी नहीं लग सकता, तो हाँ वही मैं पूछना चाह रही थी. एंड द थर्ड थिंग इज कि फॉल्स नेगेटिव के केस में थर्ड पार्ट. सबसे पहले जैसे इफ यू वर देयर इन द बिगिनिंग पार्ट, मैंने कहा कि भाई जो 30% हमारा फॉल्स नेगेटिव आता है. फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि भाई जिसको कोविड है पर वो टेस्ट में नहीं आता. इफ द पर्सन हैज सिम्टम्स, be very clear, he has to isolate for 10 plus 13 days तक घर में ही रहना है, चाहे उसको नेगेटिव आया RT-PCR या पॉजिटिव आया. यदि सिम्टोमेटिक है तो रहना ही चाहिए. मान लो घर में एक पॉजिटिव है या 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं,
वो दोनों नेगेटिव वालों को भी लेके चलिए कि भाई ये फॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं, तो हमें इनको अगले 13 दिन के लिए आइसोलेट करना है, खत्म। There's no point taking the risk. There's no point testing again. There's no point testing again. Of course, but यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है कि भाई प्लीज मेक श्योर दैट यू कंसल्ट योर डॉक्टर। भाई मान लो कि 3, 4, 5 दिन बाद फीवर नहीं उतर रहा, ये नहीं सोचना कि कुछ नहीं हो जाएगा, तब तो दिखाना ही है। थैंक यू सर। वेलकम। Hello, sir. This is Dr. Yamini. Sorry for interrupting, but I have one question for you. जी पूछिए यामिनी जी। हेलो। या Please unmute. यामिनी। सर एक्चुअली अभी लास्ट सेशन जब मेरा भी हुआ था तब भी वैक्सीनेशन की बात हुई थी। फिलहाल अभी लास्ट क्वेश्चन वैक्सीनेशन का था, तो इसीलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर प्लीज आप ये चीज सबको बताएं कि अगर हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उसके बाद हमने कितनी केयर लेनी है। लाइक फर्स्ट डोज हम जब करवाते हैं सर, उसके बाद कहते हैं कि 2-3 डेज आपको बहुत ज्यादा केयर करनी होती है बिकॉज हमारी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है। और जो सेकेंड डोज लेते हैं उसके बाद हमें क्या केयर करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन बहुत सारे अभी केसेस आए हैं ये लोगों ने फर्स्ट वैक्सीन करवाई है उसके बाद सॉरी आई एम गोइंग टू इंटरप्ट हियर। ये जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला ना कि वैक्सीनेशन में इम्यूनिटी लो हो जाती है, आई मीन आई टोटली डिसएग्री। यू सी, आपने जब वैक्सीन लगाया, ये नहीं हुआ कि आज वैक्सीन लगाया और कल से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जो हमारी एंटीबॉडीज डेवलप होने में कम से कम 14 दिन लगते हैं। 14 दिन। इसी बीच यदि आपको फीवर हो जाता है, डजंट मीन इम्यूनिटी इज लो, इट जस्ट मींस दैट यू गॉट इन्फेक्टेड। भाई यू गॉट इन्फेक्टेड बिफोर। सपोज मान लो आज मैंने वैक्सीन लगाया और 3 दिन बाद भी मेरा फीवर उतरता नहीं है, इट डजंट मीन कि मुझे वैक्सीन की वजह से हुआ या इम्यूनिटी लो हो गई। शायद मैं वैक्सीन से पहले 2 दिन पहले इन्फेक्ट हो गया हूँ और 3 या 4 दिन लगाया उसके वायरस का आने में, और बाय द टाइम आई बिकेम सिम्पटोमैटिक, मतलब जब तक तकलीफ शुरू हुई तब हुआ। ठीक है। सेकंड थिंग इज मैं शायद वो वैक्सीनेशन सेंटर में वायरस पिकअप करके आ गया, साथ में फ्री गिफ्ट लेके आ गया, और साथ में वैक्सीन ले, साथ में वायरस भी ले लिया। दैट डज नॉट मीन एनीथिंग टू डू विद द इम्यूनिटी। Yeah, this people are telling कि ये होता है, so that's what I wanted to clear you this. ये बहुत आपको वेरी क्लियर समझाना है, ये लोग कम नहीं हो रहा, इट इज पहले हो चुका है आपका। Sorry to interrupt you, but our session is going to end soon. So I thank you very much for coming and giving your precious time, sir. और सीरियसली सर आपने बहुत अच्छा टाइम दिया है सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मैंने हाफ आवर के लिए बोला था लेकिन हमने पूरा 1 आवर आपका ले लिया। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच सीरियसली सर, थैंक यू सो मच। It was a pleasure really interacting with all of you, and I wish I had more time. And we had yeah. Thank you, sir. If you have time in future, we can also conduct one more session. Yeah, sir. of course. If you have the time. Mehul ji, you can share my number in case somebody wants. I would be happy to reply to them on WhatsApp. Okay, sir. Thank you so much. If you send me WhatsApp, so kind of you, sir. It can be 6 to 8 hours also before I reply. Depends on हमने क्या है ना, बाकी कुछ करना है। Yeah, I understand. I don't expect कि आधे घंटे का reply के 10 मिनट में देखा नहीं। I will keep disturbing you. Yes, sir. I will not take you to. I will keep disturbing. Certainly, it's such a pleasure to interact with you. Thank you so much. Have a nice day. Okay, God thank bless. you so much. Safe, thank everyone. you, sir. Stay home. Thank you so much, sir. Social distancing, face masking, and hand hygiene. That's it. Thank you, sir. Thank you so much. Sir. Thank you so much.